पिछले लेसन में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। A relation R in a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A. Second, symmetric. If A1 comma A2 belongs to R implies that A2 comma A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A. Third, transitive. If A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 also belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A. Now हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो तीनों है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वंस अगेन, any relation will be equivalence relation if it is all reflexive, symmetric and transitive. अगर वो reflexive भी है, symmetric भी है और transitive भी है तो हम उसको कहेंगे equivalence relation. अब define कर लेते हैं equivalence relation को। A relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. For example, let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2. ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। R is reflexive since every triangle is congruent to itself. हर एक ट्रायंगल अपने आप से congruent होगा। मतलब for every A belongs to A comma A belongs to R. Further, if T1 T2 belongs to R, मतलब T1 और T2 congruent है, then T2 is congruent to T1. It means if T1 comma T2 belongs to R, then T2 comma T1 also belongs to R. R is reflexive since every triangle is congruent to itself. हर एक ट्रायंगल अपने आप का congruent होगा। हर एक ट्रायंगल अपने आप से congruent होगा। Further, T1 T2 belongs to R, मतलब क्या है इसका? T1 T2 belongs to R मतलब हुआ कि T1 जो है वो T2 के congruent है। इसका ये भी मतलब है कि T2 जो है वो T1 के congruent है। It also means T2 is congruent to T1. Now, if T1 is congruent to T2, then it applies T2 is congruent to T1. इसका मतलब हुआ कि T1, T2 belongs to R implies T2, T1 belongs to R. Hence, the relation R is symmetric also. तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। Now again, T1, T2 and T2, T3 belongs to R. मतलब कि T1 T2 के congruent है और T2 T3 के congruent है। इसका मतलब निकला कि T1 जो है वो T3 के congruent है। It means that if T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, then it implies T1, T3 belongs to R. Hence, this is transitive relation. इसका मतलब है ये जो relation है वो transitive भी है। Now, if any relation is reflexive, symmetric and transitive, the relation is called equivalence relation. तो ये बेस्ट एग्जांपल है equivalence relation का। उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पे set of parallel lines। इसमें भी any line will be parallel to itself, reflexive हो गया। If L1 is parallel to L2, then L2 will be parallel to L1. If L1 is parallel to L2, then L2 is parallel to L1. तो ये symmetric भी हो गया। Now, if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3. It means that L1 is parallel to L3. Hence, the relation is transitive. Now, in this set or in this relation, all the three conditions of equivalence relation, that is reflexive, symmetric and transitive, hold good. It means that this relation is also equivalence relation. Now let us come to the exercise 1.1. पहला क्वेश्चन है ये, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. First, relation R in the set A 1, 2, 3 up to 13, 14 defined as R x, y such that 3x minus y equal to 0. तो if possible write the relation in roster form. अगर हो सके तो relation को roster form में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर relation को लिख लेते हैं roster form में। R is equal to
क्या हो जाएगा? अगर हम लेते हैं x को 1, y should be 3, then only the difference will be 0. 3 into 1 minus 3 equal to 0. देन r को अगर लेते हैं 2, x को लेते हैं 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6. ऐसे अगर इसको लेते हैं 3, तो y हो जाएगा 9. इफ x इज 4, y इज 3 टाइम्स ऑफ दिस 12. इफ x इज 5, then y is 15, which is not there in the set. तो y cannot be 15, y 15 नहीं हो सकता, तो लास्ट वाला इसमें नहीं आएगा. ये हमारा सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. अब हमने इसको चेक करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है? फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a कॉमा a बिलोंग टू r. मतलब 1 1 इस सेट के लिए पर्टिकुलर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन 13 13 14 14 शुड बी देयर इन द रिलेशन. यहां पर वो होनी चाहिए. क्या यहां पर है? वो नहीं है. इसका मतलब r is not रिफ्लेक्सिव. इसका मतलब r जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्री के लिए. फॉर सिमेट्री नाउ सिमेट्री के लिए कंडीशन है इफ a, b belongs to r, then b, a should also belongs to r. फॉर एवरी a, b belongs to r. तो 1, 3 जो है वो सेट में है. 1, 3 बिलोंग टू दिस सेट. अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट में 3, 1 भी होना चाहिए. या फिर जैसे 2, 6 है तो 6, 1 भी इसमें होना चाहिए. अगर 3, 9 है तो 9, 3 भी होना चाहिए. ऐसे ही 4, 12 है तो 12, 4 भी होना चाहिए. क्या है? एक भी नहीं है. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेट है वो सिमेट्रिक भी नहीं है. थर्ड कंडीशन, थर्ड हम क्या चेक करेंगे इसमें? थर्ड है ट्रांजिटिविटी के लिए. नाउ ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है? इफ a, b belong to r and b, c belong to r, then it should imply a, c also belongs to r. अब यहां पर क्या है कि 1, 3 r को बिलोंग कर रहा है. 3, 9 भी r को बिलोंग 3, 9 भी r को बिलोंग कर रहा है ना? ऊपर है यहां पे कहीं. देन इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या होना चाहिए? इसमें 1, 9 भी एक इसका एलिमेंट होना चाहिए. 1, 9 भी r में आना चाहिए. आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव भी नहीं है. ना तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं सिमेट्रिक है और नहीं रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. देन हम सेकेंड पार्ट में आते हैं. इसके सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? रिलेशन आर in the set n of natural number defined as r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4. x जो है वो 4 से छोटा है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. r इक्वल टू अगर हम ले लेंगे x को 1, x को अगर 1 लेते हैं तो y हो जाएगा 5 + 1 6. x को अगर 2 लेते हैं तो y हो जाएगा 5 + 2 7. x को लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा 8. x को 4 नहीं ले सकते because the value of x should be less than 4. तो ये हमारा सेट का रोस्टर फॉर्म आ गया. हमारा सेट जो है वो नेचुरल नंबर में डिफाइंड है. इसलिए सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 they should be related to themselves. मतलब 1, 1 इसमें आना चाहिए, 2, 2 आना चाहिए, 3, 3 आना चाहिए. अगर आता है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्या इसमें 1, 1 है? नहीं. 2, 2 है? नहीं. एक भी अगर नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. ऑब्वियसली R is not रिफ्लेक्सिव. R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. फर्स्ट. सेकेंड में हम करेंगे सिमेट्री के लिए. फॉर सिमेट्री के लिए चेक करेंगे. सिमेट्री में क्या होता है? इफ a, b belongs to r, then क्या था? इफ a, b belongs to r, then
इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि 1,6 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 इस रिलेशन के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आर इज नॉट, ये इंप्लाई करता है आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड वाला, तीसरा होता है ट्रांजिटिविटी। हम करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए चेक, लेट अस सी वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, ट्रांजिटिव है कि नहीं। थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि क्या कंडीशन है, ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर implies A comma C belong to R, then R is called transitive। अब इसमें कंपल्सरी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, A, B and BC both should belong to R, दोनों ही R को बिलोंग करने चाहिए। अगर हम यहाँ पे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं 1,6, तो अगले वाले को चेक करने के लिए हमारे पास 6, समथिंग होना चाहिए। जैसे ये 1,6 है, तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे BC है, BC के इक्विवेलेंट, हमने AB के इक्विवेलेंट तो फाइंड कर लिया, कौन है 1,6। अब इसका BC इक्विवेलेंट क्या होगा, जिसमें पहला एलिमेंट B होगा, जिसमें पहला एलिमेंट 6 होगा, कोई है क्या, नहीं है। ऐसे ही 2,7, अगर सपोज हम 2,7 के लिए करते हैं चेक, अगर हम 2,7 के लिए चेक करते हैं तो 2,7 ए बी के इक्विवेलेंट हो गया। अब बी कॉमा सी के इक्विवेलेंट कौन सा होना चाहिए, वो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा 7, मतलब 7, 8, 7, 9, 7, 3 कुछ भी होना चाहिए, क्या है यहाँ पे, नहीं है। अब जो कंडीशन चेक करने की है, हमारे पास वही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वी कैन नॉट से इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस वी एज्यूम दैट इट इज ट्रांजिटिव। लैक ऑफ एविडेंस, या हम अंग्रेजी में कहते हैं इसको वैक्यूअसली, वी डिक्लेयर दैट आर इज ट्रांजिटिव। ये ध्यान रखना है, अगर हमको एविडेंस नहीं मिल रहे हैं किसी के अगेंस्ट, तो हम उसको चोर या मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे चीज है, हमको एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव मान ले रहे हैं। नाउ थर्ड वन इज रिलेशन आर इन अ सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equal to x, y such that y is divisible by x। मतलब सेकेंड वाला जो है वो पहले वाले से, फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट शुड बी डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि सारे के सारे रिलेशन या सेट जरूरी नहीं है कि हम रोस्टर फॉर्म में उनको लिख पाए, उनके लिए मैंने तरीका पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, वो आप जाके देख लेना उसको। वहाँ यहाँ पे अगर मैं दिखा दूंगा, आई बटन पे ऊपर चला जाएगा। कंडीशन क्या है कि सेकेंड y इज डिविजिबल बाय x, सेकेंड एलिमेंट शुड बी डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। मतलब इसमें क्या आ सकता है, 1, 5, 10 तो होगा नहीं, फिर करेंगे 6, 6। सेकेंड एलिमेंट शुड बी डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो ये आ गया, दिस इज द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नाउ पहला क्या है, इसमें फर्स्ट कंडीशन जो हमें चेक करनी होती है वो है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव है या नहीं हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिविटी डेफिनेशन में वापस आते हैं। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, E, A बिलोंग टू R, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। A में एलिमेंट क्या है,
1 2 3 4 5 6. It means that 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सारे के सारे इसमें होने चाहिए. क्या है? हाँ है. 1, 1 है. फिर आपका नंबर आता है 2, 2 वो भी है. 3, 3 भी है. 4, 4 भी है. 5, 5 भी है और 6, 6 भी है. तो इसका मतलब हुआ कि R is reflexive. इसका मतलब हुआ कि R is reflexive. R जो है वो रिफ्लेक्सिव है. उसके बाद चेक करते हैं हम सिमेट्री के लिए. सिमेट्री के लिए चेक करेंगे. सिमेट्री के लिए क्या है कंडीशन? If A, B belongs to R implies B, A belongs to R, then the relation is called symmetric. तब हम कहते हैं कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है. मतलब जैसे इसमें 1, 2 है. 1, 2 है तो क्या होना चाहिए? 2, 1 भी होना चाहिए. 1, 2 है तो 2, 1 कहीं है क्या? नहीं है. पहला ही हमने टेस्ट किया तो वही फेल हो गया. 1, 2 और 2, 1 दोनों होने चाहिए. जैसे 1, 3 है तो 3, 1 भी होने चाहिए अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है. तो 1, 2 हमने पकड़ा. पहले हमने देखा कि क्या, हमने चेक किया कि क्या 2, 1 इसको बिलोंग कर रहा है कहीं? कहीं नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है. इट मीन्स दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. इसका R इज नॉट सिमेट्रिक. R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है. फिर उसके बाद चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है? If A, B belongs to R and B, C belongs to R, then if A, C also belongs to R, then the relation is called transitive. तो हम relation को transitive कहते हैं. अब जैसे 1, 2 belongs to R, 2, 4 belong to R, 1, 4 also belong to R, या 2, 4 belongs to R, 4, 4 belong to R, तो 2, 4 belong to R हो गया. 1, 3 belong to R, 3, 6 belong to R, तो 1, 6 also belong to R. है क्या? कहीं दिख रहा है? हाँ है. या 1, 3 belong to R, 3, 3 belong to R, तो 1, 3 belong to R है. दिख रहा है तो ऑब्वियसली. तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा. R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो. इसका मतलब है कि R इज ट्रांजिटिव. R ट्रांजिटिव होगा. R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस भी होगा. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, फोर्थ पार्ट में. फोर्थ पार्ट है relation R in a set Z of all integers defined as R is equal to x, y such that x minus y is an integer. अब यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बहुत बड़ा है, तो इसको लॉजिकली हम प्रूफ कर लेते हैं. लॉजिकली हम पहले वाले भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर जो रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म है वो लिखना थोड़ा सा आसान था, इसलिए हमने उसको लॉजिकली चेक नहीं किया. यहाँ पर रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इनको लॉजिकली चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने क्या बताया था कि वी विल रिप्लेस b विद a. अब यहाँ पर b तो नहीं, यहाँ पे x और y है. y को भी हम x से ही रिप्लेस कर लेंगे. अब गिवन कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर. तो रिफ्लेक्सिविटी के चेक में क्या करेंगे? x माइनस एक्स इज एन इंटीजर. हमने स्टेटमेंट में थोड़ा मॉडिफाई किया. y वाले को भी हमने x लिख दिया टू चेक वेदर इट्स रिफ्लेक्सिव और नॉट. अब x माइनस एक्स क्या आएगा? 0. 0 इंटीजर है क्या? हाँ है. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है R इज रिफ्लेक्सिव. इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है. दूसरी सिमेट्री की कंडीशन है. सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? If A, B belongs to R implies B, A belongs to R, then R is symmetric. अब क्या चेक बताया था इसका कि हम A और B को स्वाइप करके देखते हैं कि क्या वो कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. अब यहाँ पर A और B के बदले x, y है, तो हम x और y को रिप्लेस कर लेंगे. पहला हमें दिया है, इंटरचेंज कर देंगे x और y की पोजीशन, तो ये बन जाएगा स्टेटमेंट. नाउ वी चेक वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है. ट्रू है शायद. दिस कंडीशन इज ट्रू. इसका मतलब है कि R इज सिमेट्रिक. R सिमेट्रिक भी होगा.
थर्ड क्या है, ट्रांजिटिविटी। इसके लिए मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग टू r। ये इंप्लाई करता है x माइनस y इज एन इंटीजर, या x माइनस y इज इक्वल टू m। m इज एन इंटीजर, m कोई इंटीजर है, एंड y माइनस z बिलोंग टू r। ये भी हमने एज्यूम कर लिया। इसमें नेसेसरी कंडीशन है कि इसमें नेसेसरी कंडीशन है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो a कॉमा b के बदले आ गया x कॉमा y, और b कॉमा c के बदले आ गया y कॉमा z। y कॉमा z बिलोंग टू r। Now if y comma z belong to R, as per definition y minus z is an integer। इसका मतलब है ये एक इंटीजर है, ठीक है। इसका ये मतलब निकला कि y minus z is equal to n when n belongs to integer। ये आ गया। Now let this be equation number 1 and this be equation number 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। 1 और 2 को ऐड करने पर क्या होगा कि y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बचेगा x माइनस जेड इक्वल टू एम प्लस एन हो जाएगा। लिख लेते हैं क्या होगा, 2 वी विल गेट x माइनस वाई इज x माइनस z, we will get x minus z is equal to m plus n। Since m and n both are integers, so m plus n will also be an integer। Let this be capital M। अब now the difference of x minus z is also integer। इसका मतलब हुआ it also implies x comma z belongs to R, hence R is ट्रांजिटिव। R जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। फिर रिपीट करेंगे, कंडीशन क्या थी, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन इफ a कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन द रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। x माइनस वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, x माइनस वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, x माइनस वाई इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन, y minus z is also belonging to the relation। It implies x comma z also belongs to relation। It means that R is transitive। लास्ट वाला आप देखते हैं हम क्या है। लास्ट वाला बड़ा लंबा सा है। लास्ट वाला है relation R in the set A of human being in a town at a particular time given by A। R is equal to x comma y such that x and y work at the same place। नाउ x और y जो है वो एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट वाला x एंड y वर्क इन द सेम प्लेस में काम कर रहे हैं। अब x वहीं पर काम करता है जहां पर x काम करता है, मतलब मैं वहीं काम करता हूं जहां मैं काम करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। x और y एक ही जगह पे काम करते हैं, इसका मतलब y और x भी एक ही जगह पे काम करते हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तीसरा केस x और y एक ही जगह पे काम करते हैं, y और z एक ही जगह पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि x और z भी एक ही जगह पे काम करते हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ए पार्ट तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बी वाला सेकंड वाला r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम क्वेश्चन हो गया, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। वर्क एट द सेम प्लेस लिखा है, यहां पे लिखा है सेम लोकेलिटी में रहते हैं। थर्ड है सी वाला, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। न्यूमेरिकली क्या हुआ इसका मतलब, न्यूमेरिकली हुआ कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, x इज y प्लस 7।
ये इसका मतलब हुआ अल्जेब्रिकली। हमने इस इंग्लिश को अलजेब्रा में ट्रांसलेट कर दिया तो ये आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। अब रिफ्लेक्सिविटी की क्या क्या टेस्ट मैंने बताया था कि आप y को भी x रख लो, y की जगह x कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू एक्स प्लस 7, 7 इक्वल टू 0 आ गया, 0 इक्वल टू 7 आ गया, जो कि फॉल्स आएगा। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट, फर्स्ट पार्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्री। सिमेट्री के लिए मैंने बताया था कि x और y को स्वाइप कर लेंगे, x के बदले y और y के बदले x कर देंगे। ऐसे करने से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर ये सही है तो उसके लिए ये भी सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको, मैंने यहाँ पे ले लिया से मैंने 10 ले लिया यहाँ पे, 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 7, ये ट्रू है। अब इन्हीं वैल्यू को यहां ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 7। अगर ये सही था तो एक्स वाई को रिप्लेस करने से क्या अब ये सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है, कौन सा वाला, सी वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सेकेंड वन इज नॉट, नहीं, सी वाला जो है इसका मतलब ये है कि सी वाला सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी ये नहीं है। तीसरा होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x कमा वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हुआ, हम सी वाला कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम सी वाले को सॉल्व कर रहे हैं और ट्रांजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, थर्ड पार्ट है इसका ये ट्रांजिटिविटी वाला। लेट x कमा वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 एंड y कमा z बिलोंग टू आर। ये दोनों एलिमेंट R में होने चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे वेदर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। दोनों होना जरूरी है। तो सेकंड से क्या फॉलो हो रहा है, इससे ये फॉलो हो रहा है कि y इज इक्वल टू z प्लस 7, y इज इक्वल टू z प्लस 7। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 and 2 विल गेट x इज इक्वल टू, यहां पे ये पूरी वैल्यू उठा के रख देते हैं, z की वैल्यू, y की वैल्यू यहां डाल देते हैं, ये कितने हो जाएगी, z प्लस 7 प्लस 7। दिस अलोन इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड, तो x इज इक्वल टू आ गया z प्लस 14। अब क्या ये वाला इसके जैसा है, फर्स्ट वाले के जैसा है या सेकेंड वाले के जैसा है? दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन लग रही है, जिससे लग रही है, क्या नहीं लग रही है। इसका मतलब है ये इंप्लाई करता है R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। सी वाले के बारे में बात कर रहे थे, इस वाले के बारे में, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आ जाते हैं डी वाले में। डी वाला क्या है, R इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। अब x इज वाइफ मतलब हुआ कि x फीमेल है और y जो है वो मेल है। पहला टेस्ट क्या है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम y को भी x से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर y को भी x से रिप्लेस कर देंगे तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा x इज वाइफ ऑफ x, जो कि गलत है, नहीं हो सकता। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला डी वाला केस रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहला केस। सिमेट्रिक के लिए अब x इज वाइफ ऑफ y का मतलब हुआ कि y इज द हस्बैंड ऑफ x। तो x, y बिलोंग्स टू r डज नॉट इंप्लाई y, x बिलोंग्स टू r। उल्टा हो जाएगा, वो y इज द हस्बैंड ऑफ x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड वाला, थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पार्ट क्या है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हम डी वाला कर रहे हैं, ध्यान रखना बहुत सारा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हम डी वाला कर रहे हैं। मान लेते हैं x, y बिलोंग्स टू r, हमने मान लिया या गिवन है। अब
क्या होना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए? y कॉमा z भी इसमें होना चाहिए। ये जो है x इज वाइफ ऑफ y, इसका मतलब ये फीमेल है और ये मेल है। यहां पे y इज वाइफ ऑफ x, अब ये मेल किसी की वाइफ नहीं हो सकता है। यहां पर वही लैक ऑफ एविडेंस। अब हमारे पास टेस्ट करने के लिए सेकंड वाला एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको ट्रांजिटिव एज्यूम कर लेंगे फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, या हम कहेंगे वैक्यूअसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब है आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि सबूत नहीं है। वैक्यूअसली आर इज ट्रांजिटिव। तो आज के लेसन में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट हम अगले किसी लेसन में देखते हैं। लेसन को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।